جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب صحافی حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر جماعت اسلامی لاہور کے دفتر میں تشریف لائے ہیں۔ اس وقت لاہور میں جو سب سے زیادہ سنگین صورتحال ہے وہ فضائی آلودگی ہے، جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ پنجاب کی صوبائی حکومت اس پر بڑا شور تو مچا رہی ہے اور مختلف پابندیاں بھی عائد کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں یہ بھی خبر ایک وزیر اعلیٰ کی طرف سے آئی تھی کہ ہم مشرقی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو ایک خط لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فضائی آلودگی کا معاملہ ہے یہ ہر سال نومبر کے مہینے میں شروع ہوتا ہے اور دسمبر کے آخر تک بلکہ جنوری کے شروع تک یہ چلتا رہتا ہے۔ پنجاب حکومت اور پنجاب میں جو حکمران اس وقت برسر اقتدار ہیں وہ عرصہ دراز سے اس پنجاب پر حکومت کر رہے ہیں اور کبھی بھی انہوں نے اس اہم مسئلے کی طرف توجہ نہیں دی۔ اب یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ فوری طور پر لاہور کے کچھ علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن کے نام سے پابندی عائد کر دی جائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ دار اس وقت کی پنجاب حکومت ہے، جس نے وقت پر اس کے تدارک کا کوئی انتظام نہیں کیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس وقت پنجاب میں پورے پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات عرصہ دراز سے نہیں ہوئے۔ بلدیاتی نمائندوں کے نہ ہونے کی وجہ سے شہری مسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ گندگی کے ڈھیر پورے شہر میں نظر آتے ہیں، سیوریج جو ہے وہ ابلتا ہوا نظر آتا ہے، سڑکوں پر پانی ہے، کہیں بارش ہو جاتی تھی تو کئی روز تک سڑکوں پر پانی کھڑا رہتا تھا اور اس کے نتیجے میں پھر سڑکیں بیٹھ جاتی ہیں۔ ٹریفک کے مسائل اس سے بھی زیادہ گوناگوں ہیں۔ 2 بڑے پروجیکٹ گرین لائن اور میٹرو بس سروس بنانے کے بعد ان حکمرانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ لاہور شہر کے مسائل حل ہو گئے، لیکن ان 2 بڑے روٹس کے علاوہ جو دیگر روٹس ہیں وہاں پر سے ویگنیں اور بسوں کا بالکل خاتمہ تقریباً کر دیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹریفک کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے، ٹریفک جو ہے بے ہنگم ہو گئی ہے، ٹریفک پولیس اب اس پوزیشن میں نہیں رہی کہ وہ اس ٹریفک کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ سڑکیں جو ہیں وہ اس میں جو ٹیپا نے جو سگنلز لگائے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ آؤٹ آف آرڈر ہو گئے ہیں اور وہ اپنے مقاصد پورا نہیں کر رہے۔ ٹریفک پولیس کا اب صرف کام یہ رہ گیا ہے کہ وہ جو خلاف ورزی چھوٹی موٹی موٹر سائیکل والے اور گاڑیوں والے کرتے ہیں ان کے چلان دھڑا دھڑ کیے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے کہ اصل میں ان کا کام ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنا ہے۔ ہم محکمہ پولیس سے بھی اور پنجاب حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ٹریفک پولیس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کو ہدایت جاری کی جائیں کہ یہ بیجا چالانوں کا سلسلہ ختم کیا جائے اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اس موقع پر میں بھی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے ابھی چند روز پہلے 11 لاکھ پودے اس شہر میں لگائے گئے تاکہ یہ فضائی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنا حصہ ڈال سکیں، اور یہ شجرکاری مہم جو ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ شہر میں پینے کے پانی کے مسائل میں بھی گوناگوں اضافہ ہوا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں، رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ لاہور کی 70% آبادی کو صاف پانی میسر نہیں ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے الحمدللہ لاہور میں بے شمار واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں، جس سے جو کچی آبادیاں ہیں اور چھوٹے علاقے ہیں وہ اس پانی سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن یہ کام جو ہے وہ حکومت کے کرنے کا ہے۔ حکومتوں نے جہاں جہاں پر فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں وہ اب ناکارہ ہو چکے ہیں، نہ ان کی کوئی مینٹیننس کا انتظام ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی جو مشینری میں امپروومنٹ ہونی چاہیے تھی، اس کی دیکھ بھال ہونی چاہیے تھی، وہ بالکل قطعاً نہیں ہو رہی۔ اس لیے حکومت کی طرف سے لگائے گئے
वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को या तो रिमूव करके नए लगाए जाएं या उनकी मेंटेनेंस का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। ये हम सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कल वफाकी हुकूमत ने एक ब्लंडर किया है और PIA को फ़रोख्त करने के लिए गुज़िश्ता 6 महीने से बल्कि जब से ये हुकूमत आई है उससे भी पहले निगरान हुकूमत ने भी कोशिशें शुरू कर दी थी कि हम PIA को फ़रोख्त करना चाहते हैं और उसके लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। लेकिन कल जब बिड हुई है तो पता चला कि सबसे ज़्यादा बिड सिर्फ 10 अरब रुपए की हुई है। हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत की नाकामी ही नहीं है बल्कि उसकी चालाकी भी है, और वो इस PIA को 10 अरब की बिड मंगवाने के बाद वो 15-20 अरब रुपए में इसको अपने किसी फ़र्द को, अपने किसी फ्रंट मैन को फ़रोख्त करना चाहती है। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये नजकारी का अमल जो है वो किसी सूरत में भी मुकम्मल नहीं होना चाहिए। ये हमारे इदारे हैं, ये डिफेंस के इदारे हैं, इससे मुल्क की मईशत ही वाबस्ता नहीं है बल्कि मुल्क की तरक्की का दारोमदार भी इन इदारों पर है। इसलिए PIA, रेलवे, स्टील मिल, इस तरह के बड़े इदारे जो हैं, हम इसकी निजगारी करने की हम मुज़ामत करेंगे और इसकी मुखालफत करेंगे और इसकी मज़म्मत करते हैं कि कल जो एक ड्रामेबाजी की गई है ये एक साजिश है मुल्क के ख़िलाफ़ कि मुल्क के असासों को औने पौनों फ़रोख्त कर दिया जाए। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सूबाई हुकूमत मुल्क के पंजाब के तालीमी इदारों को आउटसोर्स करने जा रही है। 14,000 तालीमी इदारे जो हैं वो पहले आउटसोर्स किए जा चुके हैं और अब मज़ीद 14,000 का प्लान भी जो है वो तैयार है। हम ये मुतालबा करते हैं कि जो पहले से तालीमी इदारे आउटसोर्स किए गए थे उनकी रिपोर्ट मंगवाई जाए, उनका ऑडिट करवाया जाए कि जब वो गवर्नमेंट चला रही थी तो उनके क्या रिज़ल्ट्स थे, और जब प्राइवेट इदारे इन स्कूल्स को चला रहे हैं और गवर्नमेंट उस पर पैसे खर्च कर रही है तो इस वक्त उनकी क्या पोजीशन है, वहाँ पर उसातिज़ा कराम की अहलियत और नाअहलियत का क्या मेयार मुकर्रर किया गया है। हम ये समझते हैं कि हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है और उसकी आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को मुफ्त तालीम दे, वो अपने सर से ये बोझ उतारना चाहती है और अपने जो कौम के टैक्स का पैसा है वो अब उन तालीमी इदारों को कि जो मालकान जो बिज़नेस करते हैं, जो कारोबार करते हैं और उनको तालीम से कोई दिलचस्पी नहीं होती, उनके हवाले करना चाहती है। तो हम इसकी मज़म्मत करते हैं और हम ये ऐलान करते हैं कि हम किसी सूरत में ये जो निजकारी का रास्ता एक आउटसोर्स की सूरत में निकाला गया है इसकी हम मज़ामत करेंगे और किसी सूरत में ये नहीं होने देंगे। हम फिर मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी तौर पर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ ताकि ये कि अवाम के नुमाइंदे अवाम के मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर सकें, और इंशाअल्लाह हम अनक़रीब बल्दियाती इंतखाबात कराने के सिलसिले में अदालत में भी जाएंगे और सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया। अंसारी साहब ये बताइएगा कि परसों सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने जिस तरह स्मोक के हवाले से ईवान को बताया वो ऐसे लग रहा है जैसे हम ख्वाबों में रहते हैं। हकीकत ये है कि जो सरकारी बसेज़ हैं, जो स्कूल्स की बसेज़ हैं, जो प्राइवेट बसेज़ हैं, जो बैंक की कैश लेके जाती हैं, धुआं इतना शदीद है। महकमा ट्रांसपोर्ट गरीब आदमी का तो ड्राइवर्स का तो चलान कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को खास तौर पर जो सरकारी महकमों की गाड़ियाँ हैं वो धुआं छोड़ी, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। क्या कहना चाहिए? जी, मेरी गुजारिश ये है कि देखें हुकूमती इदारे और हुकूमत के नुमाइंदगान सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बयान तो जारी करते हैं। मैंने तो इससे भी, ये तो आप वज़ीर इत्तलात का बयान बता रहे हैं ना, मैं तो कहता हूँ वज़ीर आला साहब ये कहती हैं कि हम इरादा रखते हैं मशरिक़ी पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखेंगे कि पोल्यूशन को वो रोके। कभी इरादा करने से भी पोल्यूशन ख़त्म हुई है? और ये जो धुआं देने वाली गाड़ियाँ, हमारा तो मुतालबा ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी। देखें जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ और अपनी मोटरसाइकिलें वीकेंड पर छुट्टी के दिन इस्तेमाल करते हैं, अपने आने जाने के लिए, मुआश के लिए वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इस्तेमाल करते हैं। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के में इजाफा होगा और फैसिलिटी एक मैसर होगी तो लोग अपनी गाड़ियाँ बाहर नहीं निकालेंगे, जिससे ये पोल्यूशन कम होगी। पोल्यूशन कम होने के लिए ये इक़दामात किए जाने चाहिए। बाकी रही बात ये कि जो सरकारी गाड़ियाँ हैं
MCL की जितनी गाड़ियां हैं, PHA की गाड़ियां हैं जो कूड़ा उठाने का काम करती हैं, ये सब धुआं छोड़ती हैं। अब अगर हम ये मुतालबा करें कि इनको बंद कर दिया जाए तो ये कूड़ा करकट कौन उठाएगा? इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि इनकी मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर की जाए, और मेंटेनेंस करने के बाद इनको ये गाड़ियाँ जब इनकी क्लियरेंस हो जाए एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से, तब इनको सड़कों पर लाने की इजाज़त दी जाए। 200 अरब रुपए की डिफाल्टर है PIA, आप कह रहे हैं इसको जो है इसकी निष्कारी ना की जाए, किस तरह इसकी कितने पैसों में तो 5 एयरलाइन जो है वो और बन जाती हैं, तो किस तरह इसको कंट्रोल किया जाए? आपने तो मजम्मत का कह दिया है, इसका हल भी जमात इस्लामी के पास है। जी बिल्कुल हल मौजूद है। देखें ये जो इदारे हैं, देखें ये जिस तरह स्कूल्स के बारे में है ना जी, जो स्कूल्स को आउटसोर्स किया जा रहा है, पहले उनको तबाह करते हैं, पहले उनको बर्बाद करते हैं, पहले उनको डिफ़ॉल्ट करते हैं और फिर उसके बाद प्लान बना लेते हैं कि इसको फ़रोख्त कर दिया जाए। PIA के साथ भी ये हो रहा है। हज़ारों की तादाद में नाजायज़ लोगों को भर्ती किया गया वहाँ पर, और उसके बाद फिर मजबूर हुई डिपार्टमेंट मजबूर हुआ डिफ़ॉल्ट होने पर, और फिर उसके ऊपर जो कर्जा है वो अब अदायगी के काबिल नहीं रहा। आप ये समझते हैं कि ये निजकारी करने से जो वो डिफ़ॉल्ट है वो ख़त्म हो जाएगा? वो तो वो हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है, वो तो उसने अदा करना ही करना है। और ये देखें ना, ये IPPs का मामला भी इसी तरह ही है। ये इन्होंने बिजली वापडा का बेड़ा गर्क कर दिया, वापडा से सारे इख्तियारात जो हैं वो ख़त्म कर दी। एक वापडा था जो पूरे मुल्क को बिजली वसाइल भी पैदा करता था और बिजली भी फराहम करता था, इसको उन्होंने बेशुमार हिस्सों बखरों में तकसीम करके उसका बेड़ा गर्क किया। IPPs ले आए, जितनी ज़रूरत थी, जितना प्याले में जितने हमारे सोर्सेज थे, जितना पानी दरकार था, उससे ज़्यादा के सौदे कर लिए उन्होंने, और फिर अब कहते ये हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। IPPs के ज़रिए से मुल्क का बेड़ा गर्क किया। PIA और रेलवे के अंदर अफसरों की भरमार करके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मराहत देकर, उनकी तरक्कियाँ करके रेलवे का और PIA का बेड़ा गर्क किया गया। इसी तरह माजी में स्टील मिल का भी बेड़ा गर्क हुआ था। तो हम ये कहते हैं कि पहले उनको पकड़ा जाए जिन्होंने इनको ख़राब किया है, जिन्होंने इनको डिफ़ॉल्ट की पोजीशन पर पहुंचाया, उसके बाद फिर जो है वो मामलात आगे बढ़ेंगे और मामलात आगे चलेंगे। इसलिए ये इस पर तो कभी बात नहीं करते कि ये PIA बर्बाद किस वजह से हुआ है, क्योंकि जिन्होंने बर्बाद किए वो आज हुक्मरान है। स्टील मिल को बर्बाद किसने किया? जिन्होंने बर्बाद किए वो आज हुक्मरान है। इसी तरह बिजली के महकमे, बिजली को और बिजली के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो किसने लागू किए? उन लोगों ने जो आज इक़्तिदार में शामिल है। इसलिए वो अपनी गलतियां कौम के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, इसकी बहरहाल हम मज़म्मत करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी।